Now in third question we have cot x is equals to 3 upon 4 and x lies in third quadrant and we need to find other trigonometric ratios. So cot x is equals to 3 upon 4. Therefore, you know that tan x is the reciprocal of cot x. So 1 upon cot x. So reciprocal. So if cot x is equal to 3 upon 4, then tan x is equals to 4 upon 3. Now we know that sec square x is equals to 1 plus tan square x. Now tan x is 4 upon 3. (25/9). So sec x is equals to plus minus root 25/9, that is plus minus 5/3. Okay, so sec x is equals to plus minus 5/3. Now let's check x lies in third quadrant. Okay, so in third quadrant sec x is negative. Okay, so in third quadrant sec x is equals to negative. Therefore sec x is equals to minus 5/3. ओके, प्लस 5/3 नहीं हो पाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है. अब sec का रेसिप्रोकल होता है बच्चों cos, तो sec x is equals to minus 5/3. So cos x is equals to 1 upon sec x, so 1 upon minus 5/3, so minus 3/5. Okay, and we know that sin square x is equals to 1 minus cos square x, so 1 minus 9/25. (16/25). So sin x is equals to plus minus root 16/25, so plus minus 4/5. ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में x है तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज ऑल्सो नेगेटिव. In third quadrant sine is negative, therefore sin x is equals to minus 4/5 and cosec x is equals to 1 upon sin x, so minus 5/4. ओके, तो इस तरह से हम अगर 1 रेशियो गिवन है तो उससे हम सारे निकाल सकते हैं. हमने कॉट से tan निकाला, tan से sec निकाला, sec से cos, cos से sin और sin से cosec.
बस हमें यही चेक करना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है. Now in fourth question, sec x is equals to 13/5 and x lies in fourth quadrant. Sec x 13/5 है, so we know that cos x is 1 upon sec x, 1 upon 13/5, therefore 5/13. Now sin square x is 1 minus cos square x, so 1 minus 5/13. So sin x is plus minus 12/13. Okay. So sin x is plus minus 12/13, but x is in फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है बच्चों? नेगेटिव. तो देयरफॉर sin x is equals to minus 12/13. ओके, तो साइन आ गया हमारे पास, तो देयरफॉर cosec is 1 upon sin x, तो ये आ गया minus 12/13, रेसिप्रोकल minus 13/12. ठीक है, हमारे पास sec था, sec से हमने cos निकाला, cos से sin, sin से cosec, तो अब निकालते हैं हम tan. We know that tan is sin upon cos, तो sin है minus 12/13 और cos है 5/13. So tan x is minus 12/5. So cot x is minus 5/12. Okay. Now in fifth question, tan x is minus 5/12. So therefore cot is 1 upon tan x. Cot is the reciprocal of tan, so it is minus 12/5. Okay. Now we know that cosec square x is equals to 1 plus cot square x, so 1 plus minus 12/5 square, so cosec square x is equals to 1 plus 144/25. LCM लिया, 25 plus 144, 169/25. So cosec x is equals to plus minus root 169/25 plus minus 13/5. तो cosec x आ गया plus minus 13/5. लेकिन हमें ये देखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? x सेकंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो ये x is in second quadrant, therefore cosec x is equals to 13/5, and if cosec x is equals to 13/5, then sin x is equals to 1 upon cosec x, so 1 upon 13/5, so it is 5/13. ठीक है, तो साइन आ गया, cosec, cot, tan से cot निकाला, cot से cosec और cosec से
साइन आ गया। अब साइन से कॉस निकाल लेते हैं, तो हमें होता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस 5/13 स्क्वायर, सो 1 माइनस 25/169, एलसीएम लिया 169 माइनस 25, सो इट इज़ 144/169, so cos square x is equals to plus minus root 144/169, so it is plus minus 12/13 cos x। ठीक है, लेकिन x कौन से क्वाड्रेंट में है? x है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x is negative, therefore cos x is equals to minus 12/13। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। Now in from question 6 to 10 we need to find the value of trigonometric functions. So in 6th question we need to find the value of sin 765 degree। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि ये एंगल थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यहाँ चलेंगे, तो ये हो गया अपना 360 डिग्री। ओके, फिर ये हो गया अपना 720 डिग्री, 2 चक्कर हो गए, और 720 के बाद हम यहाँ आ गए ये 45 डिग्री लगभग, और ये 45 और हो गया। ठीक है, तो ये 720 प्लस 45, तो हम इसको जब कोई बड़ा एंगल हो तो हम उसको 360 के मल्टीपल में देखेंगे कि 360 कितने टाइम हुआ। तो यहाँ 2 टाइम 360 हुआ, और उसके बाद 45 हो रहा है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक बड़े एंगल को 360 के मल्टीपल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस 45। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है और कॉस की वैल्यू वो रिपीट होती है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियन। ठीक है, हर 2 पाई के बाद कॉस और साइन की वैल्यू रिपीट होती है। तो इसका मतलब 360 पर वापस आके साइन की वैल्यू वही हो जाएगी, फिर 720 पर भी वही होगी। ठीक है, जो 0 पे थी, तो यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया हमारा एंगल, तो 360 हुआ, फिर 720 हुआ, तो यहाँ जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी 720 पर भी वही वैल्यू होगी, और यहाँ के बाद हम कितना चले 45। तो ध्यान रखो कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, इन सब की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि साइन की वैल्यू रिपीट होती हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी ये जो 2n पाई है 2 पाई का मल्टीपल है, और पीछे यहाँ जो प्लस होके जो एंगल आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यही बचेगा एंगल, तो इसलिए जो ये पीछे जो एंगल होगा हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पीछे क्या एंगल है 45, ये तो हो गया 2n पाई हमारा। ठीक है ना, ये 2 पाई और ये n, 2 पाई 2 टाइम, या 2 पाई n टाइम था। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो हम लिख देंगे साइन 2 इंटू 365 प्लस 45 इज इक्वल्स टू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, जब बहुत बड़ा एंगल हो तो हमने देख लिया है कि साइन की वैल्यू बार बार रिपीट होगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा एंगल देगा तो हम उसको 360 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि 360 के मल्टीपल निकालने के बाद में जो एंगल बचता है वो कितना है। ठीक है, तो वही वैल्यू उसकी होगी। तो इस तरह से अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो हमने देखा था कि ये 0, फिर इधर π/2,
फिर पाई, इधर 3 पाई/2, फिर 2 पाई। तो जो 0 पे वैल्यू थी वही 2 पाई पे होगी, क्योंकि पॉइंट तो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा था ये 1 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, पीछे वाला साइन होता है, आगे वाला कॉस। बार बार तुम्हें रिवाइज करना है, तब जाके अगली क्लास अटेंड करनी है। फिर 2 पाई पे भी 0, 4 पाई पे भी 0, ठीक है। और उसके बाद फिर जितना चल रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी है। साइन 765 डिग्री है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में होंगे पाई/180 रेडियन। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 15 से कैंसिल, 51/12 साइन 51 पाई/12। अभी 3 से और हो रहा है 17 टाइम, तो ये हो गया साइन 17/4 पाई। इसको डिवाइड करेंगे तो होगा साइन 4 पाई, 4 कंप्लीट 1/4 पाई। 17 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 कंप्लीट 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 4 पाई तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और प्लस 1/4 पाई हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, 4 पाई प्लस 1/4 पाई। तो हमें पता है 4 पाई तो साइन का 2 पाई का मल्टीपल है, तो इसको फॉर्मूला हम लगा दें, ये वाला साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई/4, और पाई/4 होता है 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो वी कैन सॉल्व इन दिस बाय दिस मैथड, ठीक है। ये भी एक तरीका है कि रेडियन में चेंज करके और हम कर सकते हैं। अभी देखो 7th क्वेश्चन, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की बात हो रही है। तो अगर हम इसको देखें, तो पहली चीज़ तो हमने देखा था कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो इसी तरह से कॉसेक माइनस एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब हम 1410 को देखें तो 360 इंटू 4 होता है 1440, ठीक है। यानी 4 बार हम कंप्लीट रेवोल्यूशन कर सकते हैं। तो 1410 को हम लिख देंगे 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री, ओके। तो अब हमें पता है कि साइन की वैल्यू 4 पाई के बाद रिपीट होती है, ठीक है। 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई इस पर रिपीट होगी। तो इसी तरह से हमें पता है कि अगर साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक की भी रिपीट होगी। तो हम वो फॉर्मूला अगर लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा ये अपना -30, ये हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 इंटू 360 पे तो उसकी वही वैल्यू रहेगी जो 0 पर है, तो 0 से हम केवल -30 चले हैं, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला फिर से लगाएं तो कॉसेक माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, तो एक माइनस तो बाहर है ही सही। अब फिर से आ गया कॉसेक -30, तो फिर ये हो गया माइनस कॉसेक 30। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस
कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की होती है 1/2, तो कॉसेक 30 उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो इस तरह से इसका आंसर है 2। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने देखा है कॉसेक और माइनस का आ रहा था एंगल, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, भाई साइन की जो भी वैल्यू माइनस में होती है वो माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इस तरह से कॉसेक, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक माइनस एक्स भी माइनस कॉसेक एक्स होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर हमने देखा 1400 tan को हम 360 के मल्टीपल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने देखा कि 4 टाइम आता है 1440। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 रेवोल्यूशन 360, ये 720, फिर ऐसे ये थर्ड टाइम, फिर 4 टाइम में हो गया अपना कितना 1440। लेकिन हमारा तो 1400 tan है, तो फिर हम ये वापस पीछे आ गए इधर, ठीक है, ये -30 डिग्री हम पीछे आ गए वापस। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई तक तो साइन की वैल्यू वही रही, ठीक है। तो वो तो आप काउंट मत करो उसको, केवल हम पीछे ये कितना है ये एंगल चलें, इसका मतलब हम, क्योंकि स्टार्टिंग से 8 पाई तक तो उसकी वैल्यू वही रही, ठीक है ना, 4 × 360 तक उसकी वैल्यू वही रही। तो बस हमने ये देखा कि इतना मूवमेंट जो है -30 जो है एंगल, उसके लिए जो वैल्यू होगी वही हमें रखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -30 लिख दिया, फिर हमने कॉसेक -30 का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कॉसेक 30 होता है, दोनों माइनस प्लस हो गए, और कॉसेक 30 की वैल्यू आ गई 2। अब देखो बच्चों 8th क्वेश्चन में tan 19 पाई/3 है, तो देखो 19/3 जो है, तो 3 6 जा 18 और 1/3, तो हो जाएगा tan 6 कंप्लीट 1/3 पाई, यानी tan 6 पाई प्लस पाई/3 ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे साइन की वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियन, सिमिलरली tan और cot की वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर पाई रेडियन। तो हर पाई रेडियन पे tan की वैल्यू रिपीट होती है, तो पाई पर, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इन सब पे पाई tan की वैल्यू और cot की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। यानी हमने ये जो 6 पाई लिया है, तो 6 पाई प्लस पाई/3 है, तो हो जाएगा tan पाई/3, ठीक है, क्योंकि tan पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan x, ठीक है। ये याद रखें। जैसे साइन में तो क्या था फॉर्मूला, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, यहाँ पे है tan पाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan x। तो साइन में जो 0 पे वैल्यू है वही 2 पाई पे भी है, कॉस में जो 0 पे वैल्यू है वो आफ्टर 2 पाई पे रिपीट हो रही है, लेकिन tan की वैल्यू देखो जो 0 पे है वो फिर पाई पे भी है, फिर वही 2 पाई पे भी है, तो इससे tan जो है वो रिपीट होगा आफ्टर पाई रेडियन, ठीक है, और साइन और कॉस रिपीट होंगे 2 पाई के बाद। अब ये जो tan पाई/3 है, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री, पाई यानी 180/3 हो गया 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो tan पाई/3 हो गया बच्चों √3, तो tan 19 पाई/3 होता है √3। नाउ इन 9th क्वेश्चन वी हैव साइन -11 पाई/3, ठीक है। तो हमें पता है कि साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई/3। नाउ 11 पाई/3 कैन बी रिटन एज 4 पाई माइनस पाई/3, क्योंकि 4 पाई में से पाई/3 माइनस करेंगे तो 3 एलसीएम, 3 4 जो 12 पाई माइनस पाई, दैट इज़ 11 पाई/3, ठीक है। तो इस तरह से हम 11 पाई/3 को हमने लिख दिया 4 पाई माइनस पाई/3, ओके। अब हमें पता है कि आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई द वैल्यू ऑफ साइन रिपीट्स, तो साइन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही है हमारे पास, ये जो प्लस है इसको माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, तो वही फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन एक्स, ठीक है।
यानी साइन 4 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना। 2n पाई यानी 4 पाई 6 पाई, ये कुछ भी हो सकता है, 2 पाई का मल्टीपल है ये, तो ये भी 2 पाई का मल्टीपल है। जब भी यहाँ 2 पाई का मल्टीपल हो तो इसको हटा दो और केवल पीछे वाला एंगल लिख दो साइन में, ठीक है। अब फिर से हम ये फॉर्मूला लगाएं, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो एक माइनस तो ये रहा, और साइन माइनस एक्स का एक बार और माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री विच इज़ √3/2। ओके, सो नाउ इन 10th क्वेश्चन वी हैव कॉट माइनस 15 पाई/4, ठीक है। तो जैसे tan की वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई रेडियन, इसी तरह से कॉट की भी रिपीट होगी, तो कॉट भी ध्यान रखना पाई प्लस एक्स होता है कॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि tan की रिपीट हो रही है तो कॉट की भी रिपीट होगी। तो ये जो है हमारा एंगल, इसको हम लिख सकते हैं -15 पाई/4 प्लस 4 पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल कॉट 4 पाई प्लस -15 पाई/4, अगर ऐसे होता तो हमने देखा भाई ये फॉर्मूला लगाया हमने कॉट पाई प्लस एक्स, ठीक है, यानी इसको पाई की जगह हम n पाई लिखें, n पाई प्लस एक्स, यानी पाई का कोई सा मल्टीपल हो, तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहाँ जो भी हो पाई का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये जो पीछे वाली वैल्यू है वही आ जाती है इधर, तो ये हो जाएगा कॉट -15 पाई/4। तो हमने यहाँ पे बस 4 पाई इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा -15 पाई, 4 जा 16 पाई। अब 16 पाई -15 पाई कितना होता है, वो होता है पाई, तो कॉट पाई/4 हो गया, कॉट पाई/4 यानी कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1। तो बच्चों इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल को हमें देखना है कि जो गिवन रेशियो है कॉट tan साइन कॉस वो कितने रेडियन के बाद रिपीट होता है, तो हमें उस गिवन एंगल को 2 पाई या पाई के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से अभी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तो अभी और क्लियर हो जाएगा।